skill development and training program on geotechnical investigation and highway material testing in association with Indian Geotechnical Society, IGS New Delhi, Indore Local Chapter, and Indus Laboratory. And it is my absolute pleasure to welcome you all to today's program. As we come together to explore and celebrate the ingenuity of our work, let us remember the powerful role we play in shaping the world around us. As Ralph Waldo Emerson once said, "Don't go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail." As civil engineers, we are not just building structures, we are forging new pathways for society, creating sustainable, enduring solutions that benefit generations to come. Let's make today a day of inspiration, innovation, and progress. Welcome, and let's begin. The infrastructure sector plays a critical role in a nation's development, with roads and highways being integral for transportation, trade, and communication. A key part of constructing sustainable highway is ensuring that the foundational materials and the soil conditions are suitable for long-term durability. This is where geotechnical investigation and highway material testing come into play. This skill development training program is designed to equip engineers, technicians, and professionals involved in highway construction with in-depth knowledge and practical skills required for conducting geotechnical investigations and testing highway materials. The training will blend theoretical concepts with hand-on practice, ensuring participants are proficient in using modern testing equipments and techniques. The Indian Geotechnical Society, established in 1948, is a professional organization dedicated to advancing geotechnical engineering in India. Geotechnical engineering, a branch of civil engineering, focuses on the behavior of earth materials in construction projects like foundations and tunnels. IGS promotes research, organizes seminar, workshop, and conferences, and publishes technical papers to enhance knowledge in field. It encourages the adoption of best practices and standards, fostering collaborations among professionals, researchers, and students. By facilitating innovation and knowledge sharing, IGS plays a crucial role in supporting sustainable infrastructure development and advancing geotechnical engineering in India. Our two-day program is filled with exciting learning opportunities. On day 1, we will begin our lecture by Dr. Kunal Gupta sir from IIT Indore, followed by a hands-on lab session where you will explore practical applications of today's concept on geotechnical engineering. On day 2, we will dive deeper into lab and practical sessions, giving you the chance to apply what you have learned. The day will conclude with a valuable session led by Dr. Priyansh Singh, focusing on advanced topics related to transportation engineering. Let's engage, explore, and make most of the experience. Moving ahead with the session, I would like to invite Dr. Amit Sharma sir, HOD, Civil Engineering Department, for his kind words. Thank you. So good morning to one and all. On behalf of Civil ISSA family, I welcome our dignitaries, Pritesh Mahajan sir, Kunal Gupta sir, faculty members, staff members, and dear students. This program is organized by IGS, IPSA, IES student chapter in collaboration with Indian Geotechnical Society, New Delhi, IGS Indore chapter, and Index Lab. So in the coming 2 days, you will learn the field applications of geotechnical and highway material testing. You will understand the actual problem you will face at the fields and ways of coming out of it. On 9th, we will visit to RRK Rao. You know this thing, na? So over there also you will see the real world problems and civil engineering applications for solving those problems. Since our institute is autonomous, so in the 8th sem you all can opt for 8th semester internship. Along with that, you can also do your project work and submit during that tenure only. So I hope and believe that your way of facing any problem will be changed after 9th. Not only that, your vision of solving problem will also be enhanced. So all the best and thank you very much.
Thank you, sir. Now, moving ahead with the session, I would like to introduce an associate to Mr. Pritesh Mahajan. Mr. Pritesh Mahajan is a geotechnical engineer with an experience of more than 20 years in this field. He runs geotechnical investigation firm based out of Indore and is doing projects worldwide. He currently has assignments which includes Indore Metro, Bhopal Metro and Chennai Metro, both elevated and underground. He also has his experience in tunnel investigation and is currently working on 6 tunnels on Indore Khandwa Road. I would like to invite Mr. Pritesh Mahajan sir for his kind words. I'll not take lot of your time. पहले तो ये बताओ कि सच में कोई सीखने कितने आए हो और सर ने बोला है इसलिए अटेंड करने आए हो। टेक्निकल बात तो बहुत सारी करेंगे, अभी तो आपके पास बड़े बड़े दिग्गज हैं, कुणाल सर हैं, तो सच में सीखने कितने लोग आए? बहुत कम हाथ ऊँचे हो रहे हैं। एनीवे, आप बहुत लकी हो। अमित सर 3-4 महीने से बहुत कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सेशन हो जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सीखने को मिले। बहुत एफर्ट डाले इन्होंने, सब जगह करे, और IGS का प्लेटफॉर्म रहा। सर सेक्रेटरी भी हैं वहाँ पे, तो सर के सारे एफर्ट्स रहे इस सेशन के लिए। कुणाल सर आए हैं, हम लोगों को तो उनको ही सुनना है, मुझे नहीं सुनना है, तो कुणाल सर का आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलेगा। अब आप ये प्लेटफॉर्म जो है आपका IGS का प्लेटफॉर्म और IPS जो एफर्ट डाल रहा है, आप मेरे हिसाब से इट्स नॉट अबाउट जस्ट सिविल इंजीनियरिंग, ये आपके लाइफ स्किल होगा। आप इसको एज ए लाइफ स्किल देखो। आप कोई सा भी बिजनेस करेंगे, आप ये आपको रिलेशनशिप काम में आएगी, नेटवर्किंग काम में आएगी, ये स्किल भी काम में आएगा। इवन इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिस विल हेल्प यू। आपको अभी रियलाइज ना होगा, पर बाद में यू हैव अ डोमेन नॉलेज, यू विल बी एन एक्सपर्ट इन सम अदर फील्ड ऑल्सो। तो Now, I would like to introduce you to our first speaker, Dr. Kunal Gupta sir. Dr. Kunal Gupta is currently a research associate in the Department of Civil Engineering at Indian Institute of Technology, IIT Indore, where he completed his PhD in Civil Engineering as a Prime Minister's Research Fellowship in 2024. Where he completed his PhD in Civil Engineering as a Prime Minister Research Fellowship in 2024. His doctoral researches focus on developing advanced landslides predictions and early warning systems using integrated modeling and real-time data analysis. He holds an MTech in Geotechnical Engineering from the National Institute of Technology, Warangal, and a BE in Civil Engineering from the Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal. He has developed IoT-based landslide monitoring setups and worked on slope stability modeling under climate change. His expertise spans geotechnical engineering, machine learning, and disaster risk reduction, earning him prestigious awards and recognitions in the field. He has been recognized with several prestigious awards, including the Young Scientist Award in Civil Engineering 2024 from Madhya Pradesh Council of Science and Technology and the Best Theme Paper Award at the 9th Young Geotechnical Engineers Conference. He has published more than 10 peer-reviewed articles in top-tier international journals. I would like to invite our distinguished guest, Dr. Kunal Gupta sir, to the stage. I would like to invite Rajesh Chaturvedi sir for felicitating Dr. Kunal Gupta sir. We are eager to learn from his vast knowledge and research experience. Please join me in welcoming Kunal Gupta sir for his section. Good morning everyone. I am Dr. Kunal Gupta. I have completed my PhD from IIT Indore. मेजरली मेरा PhD का जो टॉपिक था वो जियोटेक्निकल सब लोग जानते हैं, राइट, है ना। जियोटेक्निकल एप्लीकेशंस और मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन लैंडस्लाइड्स जो फील्ड है, लैंडस्लाइड सब लोग समझते हैं, राइट। तो लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं, उनको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मॉडल कर सकते हैं, उसके ऊपर था, ठीक है। तो बेसिकली आई स्पेशलाइज इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड आज जो भी मैं बताऊंगा बेसिक, मैंने सब कुछ बहुत बेसिक लेवल पे रखा है क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप लोग आई थिंक बीटेक 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट हैं मेजरली और कुछ एमटेक के स्टूडेंट्स होंगे, राइट, ठीक है। तो अभी मैं फोकस करूँगा जितने भी हम लोग टेस्ट करते हैं। आप अभी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 4th ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी जियो टेक्निकल के जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो सब करके रखे हैं, राइट। तो मैं फोकस करूंगा उन टेस्ट का। हम लोग जितने भी फील्ड्स होती हैं, जैसे लेटर से पेमेंट की डिज़ाइन हो गई या पेमेंट इंजीनियरिंग हो गई या फिर ये लैंडस्लाइड्स या स्लोप स्टेबिलिटी हो गया,
ठीक है, और कौन सी फील्ड्स हो गई जैसे डैम का डिज़ाइन हो गया। तो इन सब में इन टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल मतलब ये जो प्रैक्टिकल्स आप कर रहे हैं इनका क्या एप्लीकेशन है, अगर आप वो समझेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा कि हम लोग आगे इनको और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको इंटरेक्टिव रखें, मतलब आप लोगों से मैं जवाब ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा। बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 4th ईयर के लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े हुए हैं, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स बेसिक जो अपना कॉमन अंडरस्टैंडिंग होता है उससे जवाब दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को। सो शैल वी स्टार्ट। अब हम लोगों को सबको पता है बेसिक जो सिविल इंजीनियरिंग के मटेरियल्स होते हैं जो हम सब पढ़ते हैं, आप कोर्स वर्क में पढ़ते होंगे, वो क्या पढ़ रहे हैं, स्टील के बारे में पढ़ रहे हैं, डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड ऑल दैट, स्टील की प्रॉपर्टीज़, फिर कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अर्थ मटेरियल हो गया। अर्थ मटेरियल का मतलब क्या है, सॉइल एंड रॉक, ठीक है। जो बेसिक अर्थ मटेरियल है वो सॉइल एंड रॉक है, तो सॉइल एंड रॉक के बारे में पढ़ते हैं। बाकी टिम्बर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पेंट्स हो गया, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। पर मेजरली कौन से 3 मटेरियल्स पढ़ते हैं हम, स्टील, कंक्रीट एंड अर्थ मटेरियल्स, ठीक है। अब इन सब के हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इन 3 के तो मेजरली हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। स्टील के हम लोगों को आई थिंक आपको बीटेक लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराए जाते होंगे, स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इस सब को टेस्टिंग के करवाए जाते हैं, ओके। तो ये सब इन सब के मतलब स्टील, कंक्रीट और अर्थवर्क के आप टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी है क्या है, ये मेजरमेंट बेस्ड टेस्ट होंगे, थ्योरेटिकल टेस्ट होंगे या एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है। अब हम लोगों का जो मेजर फोकस है अभी के लिए, क्योंकि हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लैब टेस्ट के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किन की बात करेंगे, रॉक, सॉइल, इनके टेस्ट की। अब क्योंकि आप बीटेक लेवल पे तो आपके रॉक के टेस्ट तो नहीं होंगे, ठीक है, सॉइल के टेस्ट होते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपको सबको सॉइल के टेस्ट कराए जाते होंगे, ठीक। तो हम लोग अभी सॉइल रिलेटेड ही बात करेंगे जितनी भी है। सॉइल क्या है, आप लोगों को सब लोग सॉइल समझते हैं, राइट। क्या है सॉइल, कोई भी एक आप जवाब दे सकते हैं, कोई गलत सही की बात नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप बताइए, हम जो इंजीनियरिंग सॉइल पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉइल क्या है, हाँ, ब्रोकन फॉर्म ऑफ, मतलब एक बेसिक साइंटिफिक लेवल पे बात करें तो वॉइड्स और पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन है ना। और पार्टिकल्स इसमें कौन से हैं, सॉइल पार्टिकल या अर्थन मटेरियल का कॉम्बिनेशन है वॉइड्स के साथ, दैट इज सॉइल, ठीक है। अब हम सॉइल में 3 फेसेस की बात करते हैं। कौन कौन से 3 फेसेस की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। गैस का क्या काम है सॉइल में, हाँ, एयर वॉइड्स की बात हो रही है। सॉलिड जब 3 फेस की बात करते हैं तो हम ये 3 फेस कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड फेस। लिक्विड मतलब जो वाटर उसके वॉइड्स में एंट्रैप्ड रहता है सॉइल के, उसकी बात होती है, ठीक है। इनका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे आगे टेस्ट के साथ में समझते जाएंगे और उनके एप्लीकेशन के साथ में समझते जाएंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग क्या है बताइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 3rd ईयर के स्टूडेंट भी बता सकते हैं। सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ बताइए आप। फाउंडेशन रेस्ट ऑन द सॉइल सर। हाँ, तो बेसिकली सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं जियोटेक्निकल इंजीनियर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आई बिलीव कि किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो सॉइल ही है, ठीक है। क्योंकि उस स्ट्रक्चर का पूरा जो लोड है वो सॉइल के ऊपर ही आने वाला है कि नहीं, बात ठीक है कि नहीं है ना। तो हम लोगों को सॉइल क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि अगर हम जैसे सॉइल की प्रॉपर्टीज़ या जो टेस्ट के थ्रू हम प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे उनसे हमें क्या पता चलेगा कि सॉइल कितना लोड ले सकती है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। अब जैसे इससे पहले हमने जो मटेरियल्स पढ़े थे, मटेरियल्स की बात की थी, जैसे कंक्रीट और स्टील हो गया, उन मटेरियल्स की क्या खासियत है आप बता सकता है कोई, उसकी क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्टील और कंक्रीट की होमोजेनिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमको जैसा चाहिए वैसा मटेरियल हम बना सकते हैं। सॉइल के साथ ऐसा नहीं है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल मटेरियल, आप कितना भी उसको क्लासीफाई कर लो, कितना भी आप उसकी प्रॉपर्टीज़ निकाल लो, मोस्टली आई थिंक 2 या 3 सेंटीमीटर के बाद सैंपल लेके अगेन प्रॉपर्टी निकालोगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो यू कैन नॉट, मतलब ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि सॉइल जो है वो बिल्कुल एक उसकी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को या उसकी क्वालिटी को कंट्रोल हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात समझ रहे हैं, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है क्यों जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सब मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्या है वो भी हम लोग, आई थिंक आप में से जो लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बेसिकली स्टडी है सारे अर्थ मटेरियल्स की, ठीक है, जिसमें रॉक भी आ जाएगा और सॉइल भी आ जाएगा, ठीक है। ऑल द स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू दिस
अर्थ मटेरियल्स इज बेसिकली कम्स अंडर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। हम लोग इन जनरल इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक, बात आ रही है समझ में, ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं। अब हम लोग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में बेसिकली 2 तरीके के टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ हम निकालते हैं। एक होता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आप लोग समझते क्या होती है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा, आई थिंक 4th ईयर ने तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा? क्या होती है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़? हाँ हाँ बताइए। अच्छा, इसके अलावा कौन सी होती हैं फिर? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें क्लासीफाई नहीं करते अपन सॉइल को। हाँ, स्ट्रेंथ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हम इंजीनियरिंग में चेक करते हैं, और इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लैब में कौन से टेस्ट कर रहे हैं? मैं मोस्टली लैब टेस्ट पे ही फोकस करूँगा, ठीक है। तो लैब में हम कौन से टेस्ट कर रहे हैं? सब, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद में सीव एनालिसिस करते हैं। सीव एनालिसिस क्यों करेंगे? हाँ, अब ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है, ठीक है ना। कोर्स और फाइन सब लोग समझते हैं, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सीव एनालिसिस कर लेंगे। हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं फॉर दी फाइन ग्रेन सॉइल्स, ठीक है। यहाँ पे कराते हैं सर हाइड्रोमीटर एनालिसिस, बताया बच्चों को, ओके। 4th ईयर के मतलब स्टूडेंट्स में भी नोइंग अबाउट द हाइड्रोमीटर एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद में अगर सॉइल फाइन है तो फिर हम अटरबर्ग लिमिट्स पे जाते हैं, ठीक है। अटरबर्ग लिमिट्स क्या हैं? लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट एंड ऑल, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या निकालते हैं? इन सीटू ड्राई डेंसिटीज़ हो गई। इन सीटू को मतलब हम साइट पर निकालेंगे इन सबको, उसके लिए कोर कटर, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो गई, और एक फ्री सेल टेस्ट हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे इंडेक्स प्रॉपर्टी निकालने के बेसिक टेस्ट हो गए। ये ठीक 4th ईयर को पता होगा, आई थिंक 3rd ईयर आप लोग थोड़ा सा इनको समझ लो, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ, यूनिट वेट का कंपैरिजन है स्टैंडर्ड्स के साथ में, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है? कौन से स्टैंडर्ड यूनिट वेट से कंपेयर करते हैं जीएस निकालने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम लोग? गामा डब्ल्यू यूज़ करते हैं क्या? ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब पढ़ लो, आपको क्यों काम आएगी वो अभी मैं बताते जाऊंगा प्रेजेंटेशन के साथ में। जब सीव एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बेसिकली पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, जस्ट टू क्लासीफाई दी सॉइल, ठीक है। मतलब अगर हम सीविंग करेंगे और उसमें बहुत सारा परसेंटेज सैंड या ग्रेवल का आ रहा है तो हमको ये पता चल जाएगा कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल पार्टिकल ज़्यादा है सॉइल में, ठीक है। अगर मेजर पोर्शन जो है वो फाइन्स का आ रहा है तो इससे क्या पता चलेगा कि क्लेई है सॉइल, ठीक है। मैं आपको बहुत जनरल टर्म्स में, क्योंकि 3rd ईयर भी इन्वॉल्व है इसलिए बहुत जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ। क्ले समझते हो ना सब लोग, ठीक है। तो क्लेई है मतलब बहुत फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक। उसके बाद में अगर फाइन ग्रेन्ड सॉइल है तो हम लोग क्या अटरबर्ग लिमिट्स निकालेंगे। अटरबर्ग लिमिट्स जैसे लिक्विड लिमिट हो गया। लिक्विड लिमिट क्या होता है? वो ये वाटर कंटेंट का एक लिमिट है जिससे अगर आप पानी और उससे ज़्यादा ऐड करोगे तो फ्लो करने लगेगी, लिक्विडिटी आ जाएगी सॉइल में, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम हुआ तो सेमी सॉलिड स्टेट में रहेगी, प्लास्टिक स्टेट में रहेगी, ठीक है। उसके बाद में फिर एक जैसे प्लास्टिक लिमिट हो गई तो उससे ज़्यादा वाटर कंटेंट पे प्लास्टिक लिमिट, उससे कम पे सेमी सॉलिड स्टेट। इस तरीके से हम लोगों को एक बेसिक वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद में इन सीटू ड्राई डेंसिटी, इन सीटू ड्राई डेंसिटी क्यों निकाली जाती है 4th ईयर से बताइए कोई? ये कोर कटर या सैंड रिप्लेसमेंट हम लोग क्यों करते हैं? नहीं, वो तो अलग टेस्ट है ना, उसके लिए OMC MDD निकालने के लिए तो फील्ड डेंसिटीज़ निकालने के लिए हैं ये टेस्ट, ठीक है। फील्ड में सॉइल की क्या डेंसिटी है वो हम इन टेस्ट से निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद में फ्री स्वेल टेस्ट। फ्री स्वेल टेस्ट हमारे इस रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है। माउंट मोरिनोलाइट होता है, बहुत ज़्यादा स्वेल होती है सॉइल, ठीक है। तो इस तरीके के फ्री स्वेल टेस्ट किए जाते हैं यहाँ पे। टेस्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सर अभी इंडेक्स लैब में आपको पूरा जब उनका प्रेजेंटेशन होगा और वो लोग टेस्ट कराएंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज टेस्ट बेटर। अभी बताने से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो भी करते हैं उनके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के जो भी टेस्ट हैं वो हैं, जैसे परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी क्या होती है?
बताओ इधर से आप लोग कुछ। अभी मैं बहुत बेसिक रख रहा हूँ इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे। आप लोग बताइए ना। हाँ, अगर बहुत हम लोग जनरलाइज डेफिनेशन की बात करें तो यही होगा कि कितना परमीएब मतलब अलाउ कर रही है सॉइल का फ्लो, सॉइल फ्लो वाटर के फ्लो को कितना अलाउ कर रही है, हमारी परमिएबिलिटी हो गई। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों की कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल मतलब जिसमें वॉइड ज़्यादा हैं, बड़े हैं, जिनके वॉइड्स का साइज़ बड़ा है, दैट मीन्स कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो गई उसमें, तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। हेड का मतलब क्या है, प्रेशर, हेड आप कांस्टेंट रख रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद में हो गया वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। वेरिएबल हेड इज़ फॉर दी फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप हेड कांस्टेंट नहीं रखोगे। ठीक, करोगे टेस्ट तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी मैं एक बेसिक बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में कॉम्पैक्शन, ये आपने जो MDD OMC बताया था, ठीक है, उससे रिलेटेड। MDD मतलब होता है क्या, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, OMC मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, इसका एप्लीकेशन अभी हम डिस्कस भी करेंगे, पर बहुत जनरल एप्लीकेशन है। अगर आप कहीं पे यहाँ पे अभी रोड बनते देख रहे हो, रोड बनते देखा आपने, उसमें कॉम्पैक्शन करते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसको MDD OMC के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कितना पानी डालना है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये लेबोरेटरी वेन शियर टेस्ट है। ठीक, वेन शियर टेस्ट शियर निकालने के लिए सॉइल का। ठीक, यूजुअली ऑर्गेनिक जो सॉइल्स होती हैं ना, उनके लिए टेस्ट ये यूज़ किया जाता है। फिर बॉक्स शियर टेस्ट है, डायरेक्ट शियर टेस्ट। ये आपका टेस्ट सबसे फास्टेस्ट शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालने का टेस्ट है। ठीक है, क्यों, ये फील्ड में भी मतलब जो लैब्स होती है उसमें यूज़ किया जाता है। ये टेस्ट क्यों किया जाता है, जल्दी ये बता देता है आपको, आपकी शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। व्हाट आर द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, C एंड फाई। ठीक है, जितने लोगों को जो पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, C मतलब कोहेजन। कोहेजन आप लोग आई थिंक कोहेसिव और एडेसिव फोर्स पहले पढ़ चुके होंगे, फ्लूइड में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो वहीं से कोहेजन का टर्म है। एडेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स में डिफरेंस पता है? एडेसिव में सरफेसेस आर डिफरेंट, कोहेसिव सिमिलर टाइप के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में होगा। ठीक है, तो कोहेजन एक फोर्स है। फिर फाई मीन्स एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, फाई जो है वो आपको ये बताएगा कि मतलब आपका जो सॉइल है वो कितना जैसे अगर आप सैंड ले लें और उसको पोर करें तो कितने एंगल पे वो आपका एक कोन क्रिएट कर लेगा। बेसिकली फाई उसको बताता है, अगर हम एक जनरल टर्म में देखें तो। बाकी एज अ शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर वो आपको क्या देगा, C प्लस सिग्मा 10 फाई एक शियर स्ट्रेंथ दे देता है। वो टाउ इज इक्वल टू टाउ शियर स्ट्रेंथ विच इज सम ऑफ C प्लस सिग्मा 10 फाई। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट से। पर इसका लिमिटेशन है, क्या है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड अबाउट ही शेयर देता है। ठीक है, बट इट्स अ फास्टर टेस्ट, तो आपको कंजर्वेटिव मतलब इसके बेसिस पे कंजर्वेटिव आप रिजल्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जो प्रिसाइज टेस्टिंग होती है वो होती है ट्राई एक्सेल टेस्टिंग। वो भी आपको लैब में भी आई थिंक यहाँ पे कराते होंगे सब लोगों के पास, क्योंकि इसकी स्पेशलाइज फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो ट्राइएक्सियल टेस्टिंग में आप क्या करते हैं, कन्फाइनिंग स्ट्रेस जो फील्ड कंडीशन है उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, एक कन्फाइनिंग स्ट्रेस दे सकते हैं, उसमें प्लेन ऑफ फेलियर जो है वो डिफाइंड नहीं है। डायरेक्ट शेयर में यू आर शेयरिंग ऑन अ फिक्स डिफाइंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप UCS करते होंगे यहाँ पे। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, और ये वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्टिंग करते होंगे। ठीक है, यही टेस्ट आई थिंक आप लोगों को बीटेक लेवल पे कराए जाते हैं। ठीक, कंसोलिडेशन क्या होता है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन में आप में से कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है? नहीं, उसमें और बताओ, चलो। कंसोलिडेशन में कंप्रेशन होता है, नहीं होता है? देखो, कंसोलिडेशन को अगर डिफरेंशिएट करना है कंप्रेशन से तो सबसे बेसिक लेवल पे क्या होगा, कंसोलिडेशन में वाटर बाहर निकलता है, कंप्रेशन में एयर बाहर निकलती है आपकी। ठीक है, हो क्या रहा है, अल्टीमेटली पार्टिकल्स पास पास ही आ रहे हैं। ठीक है, बट कंसोलिडेशन में आपका वाटर बाहर निकलेगा। कंसोलिडेशन इज द फिनोमिना ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग। आप क्विक लोडिंग करके या डायनेमिक लोडिंग करके कंसोलिडेशन को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, बट
कंप्रेसिबिलिटी को आप अचीव कर सकते हो, कंप्रेशन अचीव करते हो ना आप, कैसे होता है, डायनेमिक लोडिंग करते हो, रोलर चला दे रहे हो आप, ठीक है, तो वो सब कैसे करते हो आप कंप्रेशन की केस में। कंसोलिडेशन की केस में आपको सस्टेन्ड लोडिंग चाहिए और एक्सपल्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। अगर एयर एक्सपल्स आउट हो रही है तो उसमें आपको उसको कंसोलिडेशन नहीं बोलोगे, कंप्रेशन बोलोगे, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन की आप टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। वन डायमेंशनल मतलब वाटर जो एक्सपल्स आउट हो रहा है आप एक ही डायरेक्शन से उसको बाहर निकलना अलाउ कर रहे हो, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करते हैं आप लोग, ठीक। ये सब बेसिक टेस्ट हो गए जो हम लोग आपके बीटेक लेवल पे करते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट फील्ड्स में इसका एप्लीकेशन क्या है। एट द एंड मैं केस स्टडी भी डिस्कस करूंगा दैट इज़ रिलेटेड टू माय रिसर्च जो मैंने किया अपने पीएचडी के काम में किया है, और आपको जस्ट टू टेल यू कि कितना ब्रॉड मतलब स्पेक्ट्रम में आप ये सब टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशन से इन जनरल जो अभी ब्रॉडली यूज़ होते हैं इन टेस्ट, मतलब इन टेस्ट को हम इन सारे फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, डैम इंजीनियरिंग, रिटेनिंग वॉल, स्लोप स्टेबिलिटी, जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पेवमेंट इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक्स, जियोसिंथेटिक्स एंड जियोथर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये अभी जियोथर्मल इंजीनियरिंग जो है दिस फील्ड इज़ इन बूम। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जियोथर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है, कोई जानता है? अर्थ के नीचे से नहीं, देयर आर प्लेसेस जहाँ पे एनर्जी के पॉकेट्स होते हैं, ठीक है। उस एनर्जी पॉकेट से आप लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हो, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसकी स्टडी भी अब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आती है, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्यों स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे जो भी वहाँ का जियो मटेरियल है या जियोलॉजी है, उस मटेरियल की जियोलॉजी चेंज होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को वो स्टडी करना ज़रूरी है। इट्स अ मतलब बहुत नई फील्ड है और बहुत ज़्यादा लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं, एक जियोथर्मल और एक ये जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जो लोग आगे कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में, यू कैन फोकस ऑन दीज टू, ठीक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग की, ठीक है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है? फाउंडेशन इंजीनियरिंग बेसिकली डील करती है डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशंस, ठीक है। हाँ, उसमें हम शैलो डेप्थ फाउंडेशन की भी बात करेंगे और डीपर डेप्थ फाउंडेशन की भी, ठीक है। अब जैसे डीपर डेप्थ्स में आप लोग पाइल का बहुत नाम सुनते होंगे, पाइल, ठीक है, यहाँ पे पायल वायल बोलते हैं उसको, बट दैट इज़ टेक्निकली पाइल, ठीक है। अब पाइल का डिज़ाइन फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंडर आता है, ठीक। पाइल्स हम लोग कहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, किस केसेस में पाइल को डिज़ाइन करते हैं? इट कम्स अंडर डीप फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो डीप फाउंडेशन मतलब जहाँ पे आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी शैलो डेप्थ तक कम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डीपर डेप्थ तक उसका, डीपर डेप्थ तक वो जो लोड आने वाला है हमारे स्ट्रक्चर का उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब वो डीपर डेप्थ किस बेसिस पे डिसाइड होती है, कोई बता सकता है? हाँ, वो हम उस लोड को उस स्ट्रेटा पे ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, जिस स्ट्रेटा की, मतलब हार्ड स्ट्रेटा है जिसको हम लोग रिफ्यूजल या रॉक बोलते हैं, जहाँ पे हार्ड रॉक्स आ जाएंगी वहाँ पे हम लोग लोड का ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आपका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जो आपने अभी टेस्ट पढ़े हैं। क्यों एप्लीकेशन है? हाँ, सारा ही सब कुछ इसी, मतलब फाउंडेशन इंजीनियरिंग में तो सब कुछ ही इन टेस्ट पे डिपेंडेंट है। क्यों? जैसे हम लोग क्या क्या निकालते हैं, अब फाउंडेशन की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या? शेयर स्ट्रेंथ उस सॉइल की और सेटलमेंट कितना हो रहा है, ये स्टडी, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सी और फाई की ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमको सॉइल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ निकालनी पड़ेगी। आई जस्ट वांटेड टू नो दैट। इधर इस तरफ कुछ बोलिए, आप लोग क्या बैठने आए हो क्या? हाँ हाँ, डेंसिटीज़, जैसे इधर आप लोग 4th ईयर के कितने लोग हैं? हाँ, तो बताओ यार कुछ। देखो मुझसे मैं अपना जो सुनाऊंगा, मेरा सिर्फ मैं अपनी रिसर्च की बात कर दूंगा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको एप्लीकेशंस पता चलेंगे। जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सबसे पहले कोई टेस्ट करते हैं तो सब क्या टेस्ट करते हैं आपको पता है? ये इंडेक्स प्रॉपर्टी किसने बताया था? हाँ, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे हम सबसे पहले सॉइल की, ठीक है। और एक एसपीटी किया जाता है, ठीक है। एसपीटी तो आप ये समझ लो कि वो थंब रूल है, आपको सब जगह जाके करना है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डिज़ाइन का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एसपीटी करते हो। एसपीटी की इसी को पता है क्या होता है? हाँ,
एन वैल्यू निकालते हैं जिसमें स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कोई जानता है? एसपीटी एक बहुत बेसिक सा टेस्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, एक रॉड को हम लोग हैमर के यूज़ करके अर्थ में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, एन वैल्यू निकाली जाती है उसमें, ठीक है। एन वैल्यू बेसिकली वो नंबर ऑफ ब्लोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जितने कम नंबर ऑफ ब्लोज आपको उस रॉड को अर्थ में इंसर्ट करने में लग रहे हैं, ठीक है, उतनी आपकी सॉइल वीक है, और जितने ज़्यादा ब्लोज लग रहे हैं आपको इंसर्ट करने में उतनी आपकी सॉइल स्ट्रांग है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग, क्योंकि एन, ये आपको एन वैल्यू निकालना क्यों ज़रूरी है, बताओ मुझे। एसपीटी टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? आपको पहले ही पता चल जाएगा जाते से ही कि वो जो सॉइल है वो कितना लोड ले सकती है। ये एन वैल्यू से बहुत सारी चीज़ें को रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो सीबीआर के भी को रिलेशन है इसके लिए, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी के अपने को रिलेशन से इस एन वैल्यू से। आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो एन वैल्यू का टेस्ट किया जाता है। फिर और कौन से टेस्ट करेंगे हम लोग? टेस्ट करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ निकालने के, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग को फाउंडेशन डिज़ाइन करना है तो इंडेक्स प्रॉपर्टी के टेस्ट करने सारे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, उसको सीविंग कर लेंगे सॉइल की, ठीक है। बात समझ रहे हो, सीविंग कर लेंगे तो पता चल जाएगा कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन है। फाइन है तो फिर हम उसका हाइड्रोमीटर एनालिसिस कर लेंगे। एक ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है आपका, ठीक है। उस ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बेसिस पे फिर अगर फाइन है तो हम लोग लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, जो भी अटरबर्ग लिमिट्स हैं वो सारी लिमिट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अटरबर्ग लिमिट्स निकल गई, उसके बाद उसका क्या बेनिफिट है? और सॉइल का देयर इज़ अ चार्ट फॉर द सॉइल क्लासिफिकेशन। अगर 4th ईयर स्टूडेंट्स है तो उनको पता होगा सॉइल क्लासिफिकेशन का चार्ट है। एक बार आपकी सॉइल क्लासीफाई हो गई, ठीक है, उसके बाद हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं? हाँ देखो, अब ये इस तरीके से है, अगर आपके पास में सॉइल क्लासीफाई हो गई ना तो उस तरीके की सॉइल के लिए आप एक बेसिक मतलब क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आपको पता चल गया कि अभी यहाँ पे पता है सबको, हमको पता है कि इस रीजन में ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, ठीक है। अगर हम इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली देखें तो कोई बताएगा ब्लैक कॉटन सॉइल किस क्लासिफिकेशन के अंदर आती है? CH होगी, हाईली कंप्रेसिबल क्लेज होगी हाईली कंप्रेसिबल क्लेज, ठीक है। स्वेलिंग ज़्यादा होने का मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, CH होगा ये, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल क्लेज के अंडर आ रही है। अब आपको ये पता चल गया कि CH है तो ऑल CH, जितनी भी CH क्लेज होंगी उनकी कुछ एक तरीके से उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी या उनके लिए हम कुछ वे ऑफ कंस्ट्रक्शन डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। जैसे CH है, ठीक, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये यहाँ पे है, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल है तो हमको कोशिश ये करनी है यहाँ पे पाइल फाउंडेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। शैलो डेप्थ में, मतलब वो भी कब, आपका अगर स्ट्रक्चर हाई राइज है, ठीक है। जैसे अभी मेट्रो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो उसमें आई थिंक पाइल का ही सब जगह सजेशन होगा, ठीक है। क्यों सजेशन होगा पाइल का? हाँ नहीं, अब देखो ब्लैक कॉटन सॉइल का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है कि जब तक आप उसमें पानी नहीं मिला रहे हो तब तक तो वो बहुत अच्छी सॉइल है, ठीक है। मतलब अगर उसमें पानी नहीं जा रहा है तो वेरी स्ट्रांग, और आप कुछ भी बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही पानी गया वो स्वेल करने लगेगी, ठीक है। तो अगर इतना उसका थिकनेस है तो इतना हो जाएगा। अब उसके ऊपर आपने जो भी बनाया, कोई भी फाउंडेशन आपने बना दिया, शैलो फाउंडेशन बना दिया लेटेस्ट से, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अंड्यूलेशन शो करेगा अंड्यूलेशन शो। आप बहुत सारी जगहों पे देखते होंगे, ये जो नॉर्मल घर बनाते हैं उनके फाउंडेशंस में भी जो टाइल होंगी वो टाइलें ऊपर नीचे हो गई होंगी, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाता है टाइल्स का, ठीक है। तो और दीवालों में क्रैक्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर डिज़ाइन ना करने के कारण जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं उनके साथ ही आती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस रीजन में हमको क्यों पता, ये चीज़ पता चल गई कि CH सॉइल का अपना एक प्रॉपर्टी है। अगर हम उसको, मतलब उसके लिए उस तरीके से कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि हम लोगों ने क्यों क्लासीफाई किया सॉइल को, क्यों क्लासीफाई किया? अभी मैंने बताया ना कि हम एक तरीके की उसकी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं अगर हमने क्लासीफाई कर लिया सॉइल को, ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। बात समझ रहे हो आप लोग? क्लियर है, नहीं है? ठीक है। तो एक ये बात हुई कि हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक।
अब फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जैसे मैंने बताया, अभी एग्जांपल देके ही बताया आपको कि हमारे रीजन में जैसे पाइल सजेस्ट किया जाता है। अगर लो है तो जैसे लो 1-2 स्टोरी के घर हैं तो उसमें हम कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हैं यहाँ पे? हाँ नहीं, शैलो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, पर टाइप ऑफ फाउंडेशन जो 4th ईयर है वो तो बताओ। हाँ, स्टेप फुटिंग कहाँ पे यूज़ होती है? चलिए ठीक है, स्टेप फुटिंग और ये सब यूजुअली ब्लैक कॉटन सॉइल में सजेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्निक होती है, आई थिंक जो लोग जानते होंगे, मतलब जो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ रहे होंगे आपको पता चलेगा, देयर इज़ ए टेक्निक कॉल्ड CNS लेयर टेक्निक। CNS लेयर, यहाँ पे उसको मैं आपको एक जनरल टर्म में भी बताऊंगा उसमें क्या करते हैं। CNS होती है कोहेसिव नॉन स्वेलिंग लेयर, ठीक है। उसमें आप यहाँ पे क्या करते हैं कि हम वो जो सॉइल है, स्वेलिंग सॉइल, उसको निकाल देते हैं और वहाँ पे मुरम फिल करते हैं यहाँ पे, है ना, और उसको फिर कॉम्पैक्ट करते हैं। तो दिस इज़ कोहेसिव नॉन स्वेलिंग लेयर। हमने क्या किया, नॉन स्वेलिंग लेयर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, किसके ऊपर? नीचे की जो कोहेसिव लेयर है वो ऊपर, ठीक है। एक सर्टेन डेप्थ के बाद, 1 से 2 मीटर की डेप्थ के बाद क्या होता है कि ये जो स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ है डिमिनिश होने लगती है आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल की एक सर्टेन डेप्थ के बाद में, ठीक है। तो डिमिनिश होने का मतलब ऐसे नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, बट कंपैरेटिवली अगर आप मुरम इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो स्वेलिंग कम होगी आपकी, ठीक है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये CNS लेयर टेक्निक यहाँ पे जितने भी घर जो थोड़ा टेक्निकली साउंड घर बनाते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मुरम फिल करके उसको कॉम्पैक्ट करके और उसके ऊपर फाउंडेशन देना। बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। तो ये हम लोगों को सॉइल क्लासिफिकेशन से सब पता चल रहा है कि क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है। बात आ गई समझ में? ठीक है। और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे हम लोग सॉइल का यूज़ कर रहे हैं और कौन से टेस्ट कर रहे हैं, बताओ आप लोग। जैसे डेंसिटी निकाल रहे हो आप लोग, क्यों निकाल रहे हो? डेंसिटी निकालते हो ना, क्यों निकालते हो डेंसिटी? देखो, 2 अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो, ये भी ध्यान रखना। एक हम निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, और एक निकालते हैं फील्ड डेंसिटी। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, बात समझ रहे हो ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों निकाल रहे हैं? हाँ, जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाती है किसी मटेरियल की, तो एक किसी यूनिट स्पेस में अगर आपको फिलिंग करनी है, जैसे मुरम की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने निकाल ली, ठीक है, तो आपको उस एरिया के लिए कितनी मुरम फिल करनी पड़ेगी, आपके पास में एरिया है तो वॉल्यूम पता चल जाएगा कितना, मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी, कितना वेट डालना है वो पता चल जाएगा। डेंसिटी है, वॉल्यूम है आपके पास, तो पता चलेगा नहीं चलेगा? तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ़ायदा है। और आप फील्ड डेंसिटी क्यों निकालते हैं? टेस्ट बताया मैंने फील्ड डेंसिटी का, जैसे टेस्ट था ये फील्ड डेंसिटी के टेस्ट है ना, सैंड रिप्लेसमेंट, कोर कटर। हाँ बिल्कुल ठीक, कॉम्पैक्शन जिसने बोला, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। तो ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। ये सब टेक्निकल चीज़ें, आई डोंट थिंक यू नीड टू नो अबाउट दैट, ये मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। मतलब आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड और दैट, ठीक। ये सब भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। CBR भी निकालते हैं, दैट डिपेंड्स, मतलब मैंने बोला ना, एन वैल्यू निकाल के एन से भी आप उसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ के टेस्ट करेंगे। अब शेयर स्ट्रेंथ के टेस्ट क्यों करेंगे फाउंडेशन में? आप लोगों ने फाउंडेशन डिज़ाइन 4th ईयर वालों ने तो पढ़ लिया है, राइट। तो हम लोग को बियरिंग कैपेसिटी की ज़रूरत भी पड़ती है बियरिंग कैपेसिटी की ज़रूरत। बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकलती है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स है जिन पर बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है? नहीं, शेयर तो अलग हो गया, ठीक है। इसके अलावा बियरिंग कैपेसिटीज़ के फॉर्मूले होंगे ना, तरजागी का फॉर्मूला देखा होगा, पैक-हैंसन के फॉर्मूले देखे होंगे, ठीक है। ठीक है, देखो बियरिंग कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जैसे NC/NQ एन गामा आपने देखा होगा, क्या होता है NC/NQ एन गामा, पता है? हाँ,
ठीक है, चलो इसको भी हम बहुत जनरल लगते हैं। देयर आर पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स जो आप जो भी फाउंडेशन डिज़ाइन करने वाले हो ना उसके मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। जैसे n क्या होगा आपका, कोहेजन रिलेटेड पैरामीटर होगा, NC जो है कोहेजन, NQ आपका ओवरबर्डन बेस, जो आपने जैसे ओवरबर्डन बताया तो ओवरबर्डन बेस पैरामीटर हो गया, ठीक है। n गामा आपका क्या हो गया, डेंसिटी रिलेटेड पैरामीटर हो गया, ठीक। स्पेसिफिक्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये अल्टीमेटली C और phi पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। NC, NQ, n गामा की अगर आप वैल्यूज़ देखोगे, दीज आर डिपेंडेंट ऑन C एंड phi, ठीक। तो वो कैसे निकलेंगे, अगर आपको जल्दी निकालना है, ठीक है, और प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है। प्रिसीजन की मतलब जैसे हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, 1-2 फ्लोर की बिल्डिंग है और आपको ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, फील्ड डायरेक्ट शेयर, एक वो शेयर बॉक्स होता है, उसमें आपने सॉइल का सैंपल रखा, उसको शेयर कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट आप कर लोगे, फाउंडेशन के लिए आपको C और phi की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। प्रिसीजन की ज़रूरत कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में, जैसे अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेट्रो के प्रोजेक्ट में आपको अगर आप C और phi ट्राइक्सेल से निकालोगे तो यू विल गेट बेटर C और phi की वैल्यूज़, ठीक है। उन वैल्यूज़ के बेसिस पे अगर आप कुछ भी डिज़ाइन करोगे तो वो मोर प्रिसाइज होगा, बेटर होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी अचीव किया जा सकता है उसमें बेटर, ठीक। तो ये सारे टेस्ट हम करते हैं, ठीक। ये हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज़ रिलेटेड टू द फाउंडेशन। अब उसके बाद में हम परमिएबिलिटी भी निकालते हैं सॉइल की फाउंडेशन के लिए। क्यों निकालेंगे, क्या प्रॉब्लम होगी, देखो हाँ, इसको ऐसा समझो, हमको परमिएबल सॉइल नहीं चाहिए फाउंडेशन के लिए। परमिएबल सॉइल हमको कहाँ चाहिए होती है, पेमेंट के केस में चाहिए हमको, ठीक है, कि वाटर वो बाहर निकाल दे सारा, अपने पास होल्ड करके नहीं रखे, ठीक है। तो फाउंडेशन के केस में भी हम परमिएबिलिटी टेस्ट करेंगे टू नो कि उसमें सॉइल हमारी कम परमिएबल हो, ठीक है। वैसे के वैसे ही फिर हम कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालते हैं। ये यहाँ पे जैसे इस एरिया में हमारे जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ इन अबेंडेंस, कंसोलिडेशन टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है, टू नो कि कितना लोड देने के बाद में आपका सारा के सारा वाटर का एक्सपल्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो एक बार सेटल हो गया, उसके बाद में अगर आप कुछ भी लोडिंग मतलब उसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। और क्या होता है, बहुत सी बार ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारा कंसोलिडेशन होता रहता है, क्योंकि आप सारा लोड एक साथ अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है। तो इस सब के लिए हम कंसोलिडेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। मॉइस्चर कंटेंट सबसे बेसिक टेस्ट होता है, आई डोंट थिंक वो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हो, आप सॉइल को सिर्फ ओवन में रख दे रहे हो, ठीक है, और डिफरेंस इन वेट से आप वाटर कितना एवेपोरेट हुआ वो निकाल ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद में UCS एक टेस्ट होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये सबसे बेसिक टेस्ट है अगर आपको बहुत जल्दी में ये जानना हो कि बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगी, ठीक है। तो ये बेयरिंग कैपेसिटी के रिलेटेड एक टेस्ट है UCS। यहाँ पे अभी करवाएंगे क्या UCS इनको, ओके, ठीक है। उसके बाद में हम पेमेंट इंजीनियरिंग में इसके एप्लीकेशन समझते हैं। पेमेंट इंजीनियरिंग में क्या एप्लीकेशंस होंगे, इसमें भी वो जो बेसिक टेस्ट हैं आपके वो तो आप करोगे टाइप ऑफ सॉइल निकालने के, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको ये पता चलेगा। अब जैसे ये रीजन है, क्या यहाँ पे आप फिलिंग के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल यूज़ कर सकते हो पेमेंट में, जो भी एम्बैंकमेंट बनाओगे, ये जैसे पेमेंट बना रहे हो, क्या इसमें हम फिलिंग के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। तो ये कैसे पता चला कि हमको यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, सबसे पहले वही जो हमने बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टी के टेस्ट कर लिए है ना, ठीक है। उससे हमको ये पता चल गया कि ये वाली सॉइल तो यूज़ नहीं की जा सकती। अब इसकी जगह जो भी हम रिप्लेसमेंट है, जैसे आई थिंक मेगा, यहाँ पे मेगा इंजीनियरिंग का काम चल रहा है रोड का, तो वो लोग फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं फिलिंग के लिए। फ्लाई ऐश समझते हैं आप लोग, कितने लोग समझते हैं फ्लाई ऐश क्या है? मटेरियल्स में आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया होगा फ्लाई ऐश क्या होता है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश का यूज़ कर रहे हैं वो लोग फिलिंग के लिए, ठीक। तो ऐसे डिफरेंट मटेरियल फिर हम लोग सोचते हैं, जब हमको पता है कि जो अवेलेबल मटेरियल है वहाँ पे उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते फिलिंग के लिए, ठीक है। तो पहले इंडेक्स प्रॉपर्टी का ये यूज़ हो गया। फिर अब इसमें हमने अभी डिस्कस किया परमिएबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके लिए, है नहीं है, है ना, परमिएबिलिटी का इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ। इसके अलावा और कौन सा टेस्ट होगा, वो कॉम्पैक्शन टेस्ट करते हैं, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हैवी, उसके दो हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक हैवी कॉम्पैक्शन है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है उसका, हाँ हाँ, OMC MTT निकल गया, ठीक है। क्यों उसका, तब भी क्या OMC MTT का क्या इंपॉर्टेंस है, बैठ के बता सकते हो, हाँ
ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अब जब ये पेमेंट बनाते हो आप, तो इस पर रोलिंग एक्शन करना पड़ेगा टू कॉम्पैक्ट दी जो भी लेयर आप बनाते जा रहे हो, ठीक है। रोलिंग एक्शन कैसे होगा, हमेशा याद रखो, ड्राई सॉइल को आप उतना अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते जितना आप एक वाटर मिक्स करने के बाद में सॉइल को कॉम्पैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे अचीव करोगे, आप पहले उस सॉइल का OMC और MDD निकालते हो। OMC इज़ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और MDD मतलब उस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होगी, ठीक है। तो वो आप कैसे करोगे, मतलब टेस्ट कैसे करना है वो सर बताएंगे आप लोगों को, बट उसका बेनिफिट क्या है फील्ड में, बताओ बेनिफिट। उसमें दो टर्म्स होती है, अगर फोर्थ ईयर ने पढ़ा है तो उनको पता है, एक होता है ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम और एक होता है वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। ऑप्टिमम आपका एक जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जिस पे आपको वाटर कंटेंट मिला है। अब उसकी ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में हम क्या उसका बेनिफिट है, वेट साइड में क्या बेनिफिट है, कोई बता सकता है? आप लोग जो लोग थोड़ा जियो टेक्निकल में इंटरेस्टेड हो, लैम्बेस का एक एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ना, ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी ड्राई साइड और वेट साइड का। यूजुअली सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में रख के उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम का क्या इंपॉर्टेंट, नहीं सॉरी, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम रख के कॉम्पैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है कि हम लोग रोलिंग एक्शन कर रहे हैं विच इज़ अ मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अब जब आप वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम रखते हो तो रोलिंग एक्शन और जो वेदर कंडीशन है वहाँ पे दोनों के कारण क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो अगर ड्राई साइड आप रख दोगे तो कभी भी ऑप्टिमम को तो अचीव ही नहीं करेगा, क्योंकि आप ड्राई से कम पानी दे रहे हो उसमें, राइट। तो क्या करते हो, वेट साइड रखते हो, उसके बाद रोलिंग एक्शन करते हो। तो लेट अस से कि आपका वाटर कंटेंट आया 20% वाटर कंटेंट आया, ठीक है। आपने 22% डाला और उसके बाद में रोलिंग एक्शन कर रहे हो उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो थोड़ा पानी इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट विल कम अप टू नियरली ऑप्टिमम पे। बात समझ में आ रहा है? तो हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल में, वो समझ में आ रहा है कि हम ये रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब हमको क्या करना है, इसको कॉम्पैक्ट करना है। तो कितना पानी पे कॉम्पैक्ट होगा, मैक्सिमम कॉम्पैक्शन अचीव होगा, वो कैसे पता चलेगा? हम पहले MDD OMC निकालेंगे और फिर वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के उसको कॉम्पैक्ट करेंगे टू अचीव फील्ड के ऊपर MDD और OMC। बात आ गई समझ में? इधर पीछे और कौन कौन से टेस्ट करेंगे हम फील्ड पे, यहाँ पे परमिएबिलिटी की हमने बात करी है, क्या परमिएबिलिटी करेंगे, सॉरी, ठीक है। परमिएबिलिटी टेस्ट होगा यहाँ पे, और प्लेट लोड टेस्ट नहीं किए जाते हैं इनके लिए। प्लेट लोड टेस्ट आप लोग हमेशा वहाँ के लिए करोगे जहाँ पे आप लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, हाई राइज बिल्डिंग हो गई, ठीक है। और हाँ, CBR करेंगे, ठीक है। CBR का क्या इंपॉर्टेंस है? CBR यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन के अंडर आता है, पर ठीक है, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेमेंट। हाँ, कैसे पता चलेगी वो? हाँ, थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है, थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसमें CBR वैल्यू इज़ यू नीड अ CBR वैल्यू फॉर दैट, राइट। सो ठीक है, मतलब ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को है ना। तो CBR टेस्ट करेंगे। और कौन कौन से टेस्ट होंगे, ये देखो, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। डायरेक्ट शेयर टेस्ट तो सब जगह है, मतलब आपको शेयर स्ट्रेंथ निकालने के पैरामीटर तो निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट होगा, परमिएबिलिटी हो गया, ठीक, बेयरिंग कैपेसिटी, वही जो कॉमन टेस्ट है वो सारे करना है, ठीक। अब मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे एनालिस्ट किया है कि पूरे, मतलब हम इन जनरल जब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में डिफरेंट एप्लीकेशंस को बात करते हैं तो यहाँ पे मेजरली हम लोगों को ये सारे टेस्ट अप्लाई होंगे। जैसे नेचुरल स्लोप्स की स्लोप स्टेबिलिटी रिलेटेड स्टडीज़ में, ठीक है। फिर कट स्लोप क्या होता है, कुछ पता है किसी को? हाँ, काटते हैं, दैट इज कटिंग बेसिकली, ठीक है। तो कट स्लोप की बात हो गई। फिर डैम के एम्बैंकमेंट, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा डैम एम्बैंकमेंट क्या होता है, वहाँ यूज़ होता है। बिल्डिंग का फाउंडेशन के केस में यूज़ होता है, ठीक है। सपोर्टेड एक्सकेवेशंस क्या होते हैं? हाँ, तो उसके सपोर्ट्स को डिज़ाइन करने का काम, ठीक है, वो भी हम लोगों को उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे इन सारे टेस्टों की, ठीक है। उसके बाद में टनल के डिज़ाइन में होगा, टनल के ये जो हम टेस्ट पढ़ रहे हैं मोस्टली टनल डिज़ाइंस में यूज़ इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ के लिए स्पेशलाइज टेस्ट अलग हैं, ठीक है। फिर सॉफ्ट सॉइल्स में कंस्ट्रक्शन अगर हमको करना है, जैसे मरीन सॉइल्स हो गई, ऑर्गेनिक सॉइल्स हो गई उनमें, और एक ऑफशोर फाउंडेशन इंजीनियरिंग, मतलब जिसमें हम लोग को जैसे पूरा सिर्फ सी के अंदर ही आपको कंस्ट्रक्शंस करने हो तो उसके केसेस में, ठीक है। इन सब में आप लोगों को ये बेसिक टेस्ट का एप्लीकेशन होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है
डैम इंजीनियरिंग में इन टेस्ट का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। एम्बैंकमेंट आप लोग समझते हैं, अर्थन एम्बैंकमेंट डैम्स जो हैं वो बहुत मतलब हमारे रीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। कोई किसी को पता है इस रीजन का सबसे नियरेस्ट अर्थ एम्बैंकमेंट डैम कहाँ है? आई थिंक प्रीवियसली अभी रिसेंटली फेलियर भी हुआ है उसका 1-1.5 साल पहले। नहीं, अर्थ एम्बैंकमेंट डैम की बात कर रहा हूँ। वैसे इस रीजन में बहुत बनते हैं, हमारे यहाँ पे अर्थ एम्बैंकमेंट डैम्स बहुत हैं, ठीक है। आप लोग एक बार सर्च करना, रिसेंट में आई थिंक 2023 में एक डैम फेलियर हुआ है महेश्वर के पास में, ठीक है। तो आप लोग पता करिएगा, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। अब एम्बैंकमेंट डैम क्या होता है बेसिकली, उसमें क्या है, हम अर्थ को ही जो मिट्टी है वहाँ पे अवेलेबल ना, उसी से हम लोग डैम बनाते हैं। लोकली अवेलेबल जो आपकी मिट्टी है उसी से हम डैम बनाएंगे, ठीक है। और डैम क्या है, बेसिकली डैम का क्या काम होता है, वाटर को उसके पीछे होल्ड करके रखना, ठीक है। तो ये डैम जो है, अर्थ एम्बैंकमेंट डैम का कंस्ट्रक्शन जो है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, हम लोग कितनी सही या कितनी मतलब ठीक तरीके से सॉइल को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्यों ज़रूरी है ये सॉइल का क्लासिफिकेशन, इस केस में क्यों ज़रूरी है? जो पानी को जिस अमाउंट है वो होल्ड कर रहा है वो सॉइल की वजह से, तो इसमें कोई भी कंक्रीट या कोई मटेरियल यूज नहीं कर रहे, तो हमारा जो सॉइल है वो अनप्रेडिक्टेबल है और सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ठीक। हाँ, मतलब सॉइल हमारी रिक्वायर्ड, देखो इसमें क्या होता है, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे D10 होता है। D10 आप लोग समझते होंगे जिन लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा होगा। D10 क्या होता है? D10 D30 ये सब पढ़ा होगा ना, CU CS निकालने के लिए, CC और CU निकालने के लिए, D60 D10, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आप ये डैम्स को डिज़ाइन करते हो, ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये सब आपको निकालने पड़ते हैं उसमें, ठीक। D60 मतलब जैसे 60 पर वो डायामीटर जो 60% को पासिंग अलाउ कर रहा है, ऐसा। D10 मतलब 10% ऑफ दैट अलाउ कर रहा है। इस तरीके से जो ये सब पैरामीटर्स आप लोग निकालते हो, ठीक है, इनका यहाँ पे एम्बैंकमेंट डैम के डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें दो चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। देखो, एक इसमें एक होता है ये कोर, ठीक। कोर हमेशा हम उस मटेरियल का बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्परवियस होगा, ठीक है। तो अब कोर का डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमिएबिलिटी रिलेटेड टेस्टिंग सारी करनी पड़ेंगी, जो हम पहले मैंने जो बताया आपको कि परमिएबिलिटी रिलेटेड टेस्टिंग होगी, ठीक है। फिर आउटर मटेरियल है, जैसे ये आउटर जोन्स देख रहे हो ना आप, ठीक। तो आउटर मटेरियल के लिए हम वहाँ कोशिश करते हैं वहीं का लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज़ करें, पर यहाँ पे भी हमारा मोटिव हमेशा क्या रहेगा कि हम हाईली स्वेलिंग सॉइल्स जो है वो यूज़ ना करें हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको सॉइल को क्लासीफाई करना पड़ेगा। बात आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम और कौन सी टेस्टिंग करेंगे? इसमें मैंने क्या बताया आपको, जो आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन है, मतलब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोर के डिज़ाइन में, और एट द सेम टाइम आउटर जो जोन है उसके डिज़ाइन में भी, ठीक है। तो आप वो सारे टेस्ट करेंगे जिस प्रॉपरली करेंगे जिसमें आपका सॉइल का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकले, ठीक है। अब इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, आपका MDD OMC वाला जो टेस्ट है, कॉम्पैक्शन टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉम्पैक्शन हमको प्रॉपरली अचीव करना है। बात समझ रहे हो ना, इसमें भी हम वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम जाके कॉम्पैक्शन अचीव करते हैं, ठीक। और वही रोलिंग एंड ऑल दोज एक्शंस विल बी डन फॉर दिस थिंग ऑल्सो, ठीक। तो ये हम लोग का एम्बैंकमेंट इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन हुआ है। सारे टेस्ट करने हैं आपको, परमिएबिलिटी भी करना है, शेयर स्ट्रेंथ भी निकालनी है। क्यों? क्योंकि ये डैम ऐसे ही हम, अब इसका स्लोप कैसे डिसाइड होगा, डैम को पूरे को, अर्थन डैम को डिज़ाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको उस स्लोप को डिज़ाइन करने के लिए आपको गामा पता होना चाहिए, ठीक है। अर्थ प्रेशर थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। अर्थ प्रेशर थ्योरीज आप पूरी इसमें यहाँ पे अप्लाई करोगे जस्ट टू डिज़ाइन दिस थिंग, ठीक है। गामा निकलेगा तो उससे आपको ये पता चलेगा कितना वेट नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये यहाँ से अपलिफ्ट प्रेशर लगता है डैम के ऊपर, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर के डिसीजन के लिए भी आपको ज़रूरी है कि कितना पहले नीचे फोर्स आ रहा है, विच विल बी ट्रांसलेटेड अबोव, ठीक है। अपलिफ्ट कितना लगेगा, नीचे के वाटर से ही ऊपर का जाएगा ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कॉफर डैम्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली कभी मतलब यहाँ पे आई डोंट नो इस रीजन में होता है कि नहीं तो शीट पाइल्स लगे ही जाती है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट टू मेक इट मोर इनर्ट, कि वो वाटर का इन्फ्लो नहीं करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया। ये सारे टेस्ट हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये। फिर रिटेनिंग वॉल क्या होती है, पता है किसी को?
हाँ, नाम से थर्ड ईयर के स्टूडेंट, ये रिटेनिंग वॉल से क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ, एनीथिंग टू रिटेन समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे समथिंग क्या होगा? सॉइल ही होगा अल्टीमेटली। हाँ, ठीक है। तो सॉइल को रिटेन करने के लिए हम लोग रिटेनिंग वॉल्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब रिटेनिंग वॉल के डिज़ाइन के लिए भी आपको मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि अब यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है विच इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर एज अ फिल मटेरियल इन रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है। अगर आप अभी आई थिंक यहाँ पे कोई फ्लाईओवर शायद 3 इमली वाला है इस रास्ते पे ना, अभी रिसेंट इस नियरेस्ट फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन कोई चल रहा हो ना, तो हाँ, फूटी कोठी वाला है। फूटी कोठी वाले में देखना, वहाँ पे उन्होंने रिटेनिंग ये पैनल्स लगाए हुए हैं। पैनल्स के पीछे फिलिंग के लिए वो मटेरियल प्रेफर करते हैं जिसमें लेस स्वेलिंग हो, ठीक है। तो उसमें देखना, आई थिंक वो लोग मुरम और सॉइल का कुछ मिक्सचर डाल रहे होंगे, ठीक। मैंने उसका कंस्ट्रक्शन देखा नहीं, सिर्फ रिटेन वो जो उनके पैनल्स लगे थे वो देखे। अब वो पैनल्स किस बात पे मतलब वो पैनल का साइजेस कैसे डिसाइड होता है? आपको क्या लगता है कि वो जो पैनल लगे हुए हैं वो बस उन्होंने मतलब लगा दिए हैं? ऐसा नहीं है, वो पैनल डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। पैनल किस बात पे डिज़ाइन होंगे? आप अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है। अर्थ प्रेशर थ्योरी के बेसिस पे वो लोग डिज़ाइन करते हैं। तो अर्थ प्रेशर थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? गामा चाहिए आपको, सॉइल का चाहिए गामा। गामा कैसे निकलेगा? फील्ड डेंसिटी निकलेगी क्या यहाँ पर, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलेगी? क्या निकलेगा? हाँ, मैंने अभी बताया ना आपको, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फील्ड डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ होगी, है ना, उससे क्या निकलेगा? गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके आप मटेरियल की डेंसिटीज़ निकाल सकते हो, जो मल्टीप्लाई करके आप जैसे हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस पे कितना अर्थ प्रेशर, किस डेप्थ पे कितना अर्थ प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना। और उसमें के, और जैसे एक्टिव है तो एक्टिव का टर्म यूज़ होगा, पैसिव हो तो पैसिव का टर्म यूज़ होगा। अब वो एक्टिव और पैसिव के टर्म किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं? के और के पी किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं? कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है वो के और के पी? फाई पे डिपेंडेंट है ना। फाई कहाँ से मिलेगा आपको? अगेन आपको सी फाई के टेस्ट करने पड़ेंगे। बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये हर टेस्ट का अपना एप्लीकेशन है। सारे जियो टेक्निकल मतलब जितने भी तरीके के आप इस तरीके के डिज़ाइंस करोगे उसमें। बात आ रही है समझ में? फिर ये अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सब हम लोग मतलब ये लैटरल रिटेनिंग स्ट्रक्चर हो गए, सॉरी। हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्लोप स्टेबिलिटी की, ठीक है। देखो, स्लोप हम लोग बहुत मतलब मैक्सिमम हिली रीजन्स में हम लोग स्लोप्स देखते हैं, ठीक है। नॉन हिली रीजन्स में भी आप लोग स्लोप देखोगे। स्लोप है क्या बेसिकली? एनीथिंग स्लोपी ग्राउंड, है ना, स्लोपी ग्राउंड है, ठीक। अब हम लोग जब स्लोप स्टेबिलिटी की मैक्सिमम बात करेंगे तो वहाँ बात करेंगे जहाँ पे स्लोप स्टीप्स होते हैं, ठीक है। अगर जेंटल स्लोप्स हैं या फिर जिनके स्लोप 30 डिग्री तक भी स्लोप है तो उससे हमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, स्टेबल है अपने आप में ही वो, ठीक है। पर जहाँ पे स्लोप स्टीप होते हैं, स्टीप स्लोप्स मतलब लेटर से 40 या 45 के ऊपर जो स्लोप होंगे, ठीक है, वो स्लोप में क्या होता है, फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस हम लोगों को करना पड़ता है। ये हिली रीजन्स के लिए ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। मेरा जो पूरा काम है अपने PhD का वो इसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो अब स्लोप अनस्टेबल क्यों होते हैं? देयर आर 2 बेसिक रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ स्लोप्स और अनस्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। एक होगा रेनफॉल, ठीक है, और दूसरा होगा अर्थक्वेक, ठीक है। 2 ही मेजर रीजन है हमारे स्लोप फेलियर के। बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। जैसे हम बात करें हिली रीजन्स लाइक उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे जो मेजरली रीज़न होता है वो कौन सा होता है? हमारा रेनफॉल। आप देखते होंगे लैंडस्लाइडिंग का जितना आपको न्यूज़ मिलता होगा वो बारिश में ही मिलता होगा, बारिश में ही मिलता है। क्यों हो रहा है ये? टेक्निकली बताओ, 4th ईयर के स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका आंसर कि वो आपका रेनफॉल क्या कर रहा है, या एमटेक हैं जो एमटेक के स्टूडेंट्स अगर बता सके तो। हाँ हाँ बोलो, बैठे बैठे बोलो। नहीं, उससे स्लोप फेलियर नहीं है ना, वो तो सॉइल इरोड होके चली जाएगी। नहीं देखो,
बहुत बेसिक सी बात है, इसमें क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर समझते हो, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि ये वाटर क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेट होकर अंदर जा रहा है। पहले जो सॉइल स्टेबल थी, ठीक है, वो क्या हो रही है, ये इन्फिल्ट्रेशन होने के कारण, ठीक, वो सॉइल अब गीली होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो पोर वाटर प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस से कैसे रिलेशन है पोर वाटर प्रेशर का, जितना ज़्यादा पोर वाटर प्रेशर उतनी कम इफेक्टिव स्ट्रेस, जितना कम इफेक्टिव स्ट्रेस उतनी कम शेयर स्ट्रेंथ। बात समझते हो ना, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो जितना कम इफेक्टिव स्ट्रेस उतना कम शेयर स्ट्रेंथ, और शेयर स्ट्रेंथ कम होने पे क्या होता है, आपका स्लोप का फेलियर होगा, ठीक है। अब फेलियर किस उसमें होता है, एक देयर इज़ अ क्रिटिकल स्लिप सरफेस जिसके अलॉन्ग फेलियर होता है। आप डिफरेंट थ्योरीज आई थिंक आपने पढ़ भी ली होंगी, ठीक है, और आप पढ़ोगे भी आगे, ठीक है। तो ये क्रिटिकल स्लिप सरफेस जो है, इसमें दो फोर्सेज मेजरली एक्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है रेजिस्टिंग फोर्स, एक होता है ड्राइविंग फोर्स, ठीक। रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा होगा, रेजिस्ट कौन सा फोर्स करेगा, अभी हमने बात करी ना, स्ट्रेंथ, shear strength is the resisting force which is acting on the critical slip surface। वो उसके फेलियर को रेजिस्ट कर रहा है ना, फेलियर होने को। और ड्राइविंग फोर्स कौन से हैं, जैसे ये पोर वाटर प्रेशर हो गया, वो विच इज जनरेटेड ड्यू टू दी हम लोग का रेनफॉल जो हुआ उसके कारण। और कौन सा होगा, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या, एक लैटरल फोर्स है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको स्लोप के फेलियर को और फेलियर करने में हेल्प करेगा। बात समझ रहे हो ना, ठीक। तो ये एक बहुत बेसिक सी बात हो गई आपकी कि स्लोप क्यों फेल हो रहा है, ठीक। मैं अपनी केस स्टडी इसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये लैंडस्लाइड्स का एग्जांपल होगा, ठीक है, मतलब आप लोगों को पता ही है, इतना लैंडस्लाइड हम लोग देख चुके हैं या सुनते हैं आजकल न्यूज़ में। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना नाउअडेज, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर्स एंड ऑल है। आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा, स्लोप स्टेबिलिटी आपको वो है क्या टॉपिक, 4th ईयर ने पढ़ा है क्या? हाँ, ये सब फेलियर्स जो हैं ये सब पढ़े होंगे ना आपने, ठीक है। तो अब मैं केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। दिस इज़, मैं बहुत जनरल रखूँगा, दिस इज़ रिलेटेड टू माय रिसर्च, ठीक है। मेरी रिसर्च उत्तराखंड स्टेट के ऊपर थी, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट आपको सबको पता है कि वो जो पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे मैंने स्टडी किया। मेरा जो रिसर्च फोकस था वो क्या था, लैंडस्लाइड की ससेप्टिबिलिटी, मतलब प्रेडिक्ट करना कि कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, ठीक है। लैंडस्लाइड का मैकेनिज्म समझना, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये समझना, ठीक है, और फिर लैंडस्लाइड को मॉडल करना, ठीक। मॉडलिंग का क्या मतलब होता है, आप में से कोई समझता है मॉडलिंग का क्या मतलब है? मतलब जो वो लैंडस्लाइड पहले हो चुकी है, मैं पूरी लैंडस्लाइडिंग, पूरा जो फिनोमेना है उसको वापस जनरेट करूंगा बेस्ड ऑन दी पैरामीटर्स जो हमको मिले हैं। अब यहाँ पे वही बात होगी जो मैंने आपको बताया ना कि क्या एप्लीकेशन से बेसिक जो हम जियो टेक्निकल के टेस्टिंग करते हैं उसका, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टी डिसिप्लिनरी आपको चीज़ें बताऊँगा। क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अब अगर आप ये सोचो कि आप सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, और सिर्फ सिविल का नॉलेज होने से आपको आगे जॉब मिल जाएगी, तो मतलब आई थिंक आप लोग सबसे बड़े अंधेरे में हो, ठीक है। हाँ, आपको देखो, सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने आप लोगों को, आप मेरे इंट्रोडक्शन में सुन चुके होंगे कि मैं ओरिएंटल से पढ़ा हूँ, भोपाल से, बीटेक मेरी वहाँ से है, ठीक है, बी जो है मेरी वहाँ से है, ठीक। वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये समझ लो कि 40 से 50% स्टूडेंट्स ने कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं था, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया था 2011 में, तब उनको बी के टाइम पे उन्होंने कंप्यूटर नहीं देखा था, ठीक है। और वही स्टूडेंट बहुत स्ट्रिंजेंट रहे और आगे तक उन्होंने कभी लर्न नहीं किया कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल दैट। अभी भी वो वही साइट इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं। 10 साल हो गए मेरे को मतलब अपना बी कंप्लीट किए हुए। आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने ट्रांजिशन करो सॉफ्टवेयर लर्निंग पे, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट पे। स्किल का मतलब यही होता है कि आप जो अभी आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, उनको सर्च करके, ठीक है, और उनकी तरफ मूव ऑन करते जाओ, उनको लर्न करते जाओ, बहुत आसानी से लर्न कर लोगे। आप में से कुछ स्टूडेंट, ये 2 स्टूडेंट हम लोग के साथ IIT इंदौर में इंटर्नशिप कर चुके हैं, उनसे पूछना उन्होंने कितना लर्न किया है, ठीक है। यही चीज़ अगर वो ठीक से पोर्ट्रे कर देंगे, बता देंगे बाहर, दे विल डेफिनेटली गोना गेट द जॉब, ठीक है। जो लोग नहीं सॉफ्टवेयर लर्न करेंगे, जो लोग नहीं टेक्नोलॉजी लर्न करेंगे, वो लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग टेक्नोलॉजी को लर्न करो, ठीक है। टीचर नहीं मिल रहे हैं आजकल, यूट्यूब पे सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, ठीक है। हमने कहाँ से सीखा, हमने भी वहीं से सीखा, हमको कोई सिखाने नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग भी सीख सकते हो,
है ना। तो आप लोग करो, अब मैं बताता हूँ कि क्या वाई द टेक्नोलॉजीज आर इंटर रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्यों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे मेरा फोकस था किस चीज़ पे ऊपर, वेस्टर्न हिमालयाज उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट मैंने क्यों लिया, आपको सबको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स होता है और सीस्मिकली बहुत एक्टिव रीजन है, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे सबसे बड़ा अर्थक्वेक चमोली अर्थक्वेक 1999 में आया है, ठीक है, बट दिस रीजन लाइज इन बिटवीन दी ये 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक और 1934 नेपाल अर्थक्वेक। दिस बेसिकली इसको सेंट्रल सीस्मिक गैप बोलते हैं। सेंट्रल सीस्मिक गैप में मतलब ऐसा कहा जाता है कि देयर इज़ अ हाई एनर्जी एक्यूमुलेशन। उसका क्या मतलब है कि फ्यूचर में एक बहुत हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आएगा इस जगह पे, ठीक है। तो हम लोगों को जो भी स्टडीज़ करनी है वो इस तरीके से करनी है कि अर्थक्वेक को तो हमको कंसिडर करना ही है, ठीक है। तो मेरी सारी स्टडीज़ में अर्थक्वेक और रेनफॉल दोनों को मैंने फैक्टर्स कंसिडर किया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या था, मैंने बताया ना कि एक तो मेरे को लैंडस्लाइड प्रेडिक्ट करनी थी और एक लैंडस्लाइड का मैकेनिज्म समझना था, ठीक है। अब मैकेनिज्म समझने के लिए हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। लैंडस्लाइड कैसे होती है, क्या मैंने बताया आपको रीज़न, पोर वाटर प्रेशर का राइज, ठीक है। और क्या होता है, सॉइल का अपना मॉइस्चर होता है, सॉइल टेंशन होता है, ठीक है। सॉइल टेंशन एक फिनोमेना है, ठीक है, वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक। तो सॉइल टेंशन को स्टडी करना था मुझे, ठीक है। अब ये सारे किसके कारण जनरेट हो रहे हैं, रेनफॉल के कारण, अर्थक्वेक के कारण, बाहर से जो भी एयर का टेम्परेचर है उसके कारण, ठीक है ना। और क्या, और भी पैरामीटर्स है, वेजिटेशन। आपको जैसे पता होगा कि रूट्स जो होती है प्लांट की वो क्या करती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो रूट डेप्थ जो है, ठीक है, उस वेजिटेशन की हाइट कितनी है, कम हाइट का वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेगा आपकी सॉइल को, ठीक है। जितनी हाइट बढ़ती जाती है वो क्या करेगा, एयर के इफेक्ट के कारण, लेटरल फोर्सेस के कारण इम्बैलेंस करने की पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको मुझे स्टडी करना था। अब उसके लिए मैंने क्या किया, आई इंस्टॉल्ड अ मॉनिटरिंग सिस्टम एट वन ऑफ द लैंडस्लाइड्स। बहुत लामबगढ़ लैंडस्लाइड जोन है और वहाँ पर अगर आप कभी जोशीमठ से बद्रीनाथ जाओ ना तो उसमें बिल्कुल सेंटर में पड़ती है वो जगह, लामबगढ़ लैंडस्लाइड जोन। आज से 6 साल पहले देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड मैकेफेरी, ठीक है। मैकेफेरी 2013 में वहाँ पे आपदा आई थी, आप लोगों को पता होगा। 2013 से उस पूरे रीजन में उस स्लोप को स्टेबलाइज करने का काम कर रही है। स्टेबलाइज करने का मतलब समझते हो, स्लोप स्टेबलाइज करने का क्या मतलब होता है कि उसके फेलियर को मिटिगेट करना, वो फेलियर ना हो ये कोशिश कर रही थी वो, ठीक है। और वो कुछ भी एक्शन करते थे, मतलब मैकेफेरी है दैट कंपनी इज़ पेइंग lakhs of rupees टू इट्स डिज़ाइनर जस्ट सो दैट कि वहाँ पे आपका फेलियर ना हो उस स्लोप का, ठीक है। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। 2013 से लेकर 2021 तक, बिफोर प्री कोविड टाइम तक, हर साल वहाँ पे ये फेलियर्स होते थे, ठीक है। 2020 तक, हाँ, प्री कोविड टाइम्स तक हर साल वहाँ पे फेलियर होते थे, ठीक है। क्यों ये हो रहे थे, आप में से बता सकता है मुझे क्यों ये हो रहे थे। देखो फेलियर तो वो तो ऑब्वियसली कि स्लोप क्यों फेलियर हो रहा है वो हमने बता दिया कि रेनफॉल हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर राइज हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे उस कंपनी ने प्रॉपरली सॉइल का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं किया, ठीक है। सारे मतलब अब इस रीजन का आई कैंट कमेंट बट आई वर्कड देयर, ठीक है। वहाँ पे कोई भी कंपनी जाके प्रॉपरली जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। आपने सिंक्यारा टनल का भी सुना होगा, सुना है ना, सिंक्यारा टनल फेल हुआ था लास्ट ईयर, वो कुछ आई थिंक 21-22 फंस गए थे वहाँ पे वर्कर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो जो सिंक्यारा टनल का था वहाँ पे भी यही हुआ, प्रॉपर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए था, उन्होंने नहीं की, ठीक है। तो इन रीजन्स में क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज़ अ टफ टास्क हियर, ठीक है। तो वो लोग जैसे अगर हमको बोला कि आप 30 मीटर तक का बोरहोल डिग करो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे 8 मीटर 10 मीटर तक का, क्योंकि वो आसान है डिग करना, ठीक है। 8-10 का करके बाकी का इंटरपोलेट करके रिजल्ट पुट कर देंगे, बट वो तो सही नहीं है ना, ठीक है। तो दैट वाज द सेम थिंग विच हैपेंड फॉर दिस लामबगढ़ लैंडस्लाइड जोन, ठीक है। ये है लामबगढ़ लैंडस्लाइड जोन, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, और इसका जूम वर्जन में बता दूंगा, ठीक है। तो वो यही हो रहा था वहाँ पे कि नो वन वाज प्रॉपरली, मतलब वहाँ पे टेस्टिंग नहीं कर रहा था, ठीक है। तो हम लोगों के पास में प्रॉपर वहाँ पे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं थे और प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही थी, इसलिए वो जो भी इसका मिटिगेशन मेजर डिज़ाइन करते थे वो वर्कआउट नहीं करता था, ठीक है। मैकेफेरी
मतलब ये समझ लो कि उस एरिया में उनको जितने प्रोजेक्ट्स मिले थे दे लॉस्ट ऑल प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक गलती के कारण, ठीक है। फिर उन्होंने बहुत आफ्टर दे टुक 3 years टू प्रॉपरली डिज़ाइन दिस एंड बाद में उन्होंने ठीक कर दिया इसको, ठीक है। बट उसके लिए उनको क्या करना पड़ा कि पूरे स्लोप को कट करना पड़ा। कट एंड फिल समझते हो ना, कट करना होता है। पूरे स्लोप को कट करके उन्होंने गेबियन वॉल्स समझते हैं आप में से कोई भी? गेबियंस क्या होते हैं कुछ पता है? कभी पहाड़ पे जाओगे, अभी मैं बता दे रहा हूँ, पहाड़ पे जाके चेक करना। गेबियंस क्या होते हैं? स्टील की जालियों के अंदर वो लोग पत्थर भर देते हैं और वॉल्स बना देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे स्टील की जालियों के पत्थर बड़े हुए ब्लॉक्स होते हैं, वो एक के ऊपर एक रख देते हैं और उनको गेबियन वॉल्स कहा जाता है। मैं आपको जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ, टेक्निकली और कुछ होता है, इनको भी डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो वो लोगों ने गेबियंस रख दिए, गेबियंस बनाई उस जगह पे, और नाउ दैट प्लेस इज सेफ फॉर कंप्लीट ट्रैवल, ठीक है। और उन्होंने पूरे स्लोप को कट कर दिया। अब वो स्लोप कैसा दिखता है, आई विल शो यू। देखिए ये है इनका गेबियन वॉल, दिख रहा है आप लोगों को? ये और ये पूरा स्लोप है। एक टाइम पर ये स्लोप यहाँ तक हुआ करता था। बात समझ रहे हो आप? तो इन्होंने देखो इतना, अब यहाँ पे फोटो में आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कभी गूगल अर्थ पे लामबगढ़ लैंडस्लाइड जोन सर्च करना तो आपको ज़्यादा प्रॉपरली समझ में आएगा। उनको इतना काटना पड़ा है, ठीक है। और ये हाइट कितनी होगी आपको मैं बताता हूँ, कम से कम ये आधा किलोमीटर ऊंचा है, आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही ऊंचा है। बात समझ रहे हो आप? कितना बड़ा स्लोप है, यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है वो, ठीक। तो इतना उनको कट करना पड़ा। और आप देखो तब भी उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अभी इस एरिया में उनको प्रॉब्लम अभी भी आ ही रहा है, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग स्लोप। सो आई डिड दी सेंसर इंस्टॉलेशन हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे और इसका मैकेनिज्म समझना और उसको मॉडल करना बहुत आई थॉट कि इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। तो मैंने यहाँ पे सेंसर इंस्टॉल करे। अब सेंसर्स कौन कौन से इंस्टॉल करे, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर सेंसर इंस्टॉल किया, ठीक है। फिर माइक्रो सिस्मिक मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया अर्थक्वेक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। फिर सॉइल टेंशन, वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट, ठीक है। फिर सॉइल टेम्परेचर, ये सारे सेंसर्स मैंने अंडरग्राउंड इंस्टॉल करें, ठीक है। फिर क्या होता है, सॉइल के एक्सटेंसोमीटर्स भी होते हैं, सॉइल का एक्सटेंशन कितना हो रहा है वो बताने के लिए सॉइल एक्सटेंसोमीटर होते हैं। फिर इंक्लाइनोमीटर्स होते हैं कि वो कितना इंक्लिनेशन हो रहा है, सॉइल का मूवमेंट बेसिकली मेजर करने के सेंसर्स होते हैं, वो इंस्टॉल करें मैंने, ठीक है। ये सारे सेंसर्स इंस्टॉल करें। और क्योंकि वेदर का इफेक्ट भी स्टडी करना था तो एक वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया मैंने, ठीक है। आई थिंक आपकी यहाँ इस कैंपस में भी एक वेदर स्टेशन है, ठीक है। तो आप जाके देखना उसके डेटा को। वेदर स्टेशन आपको सारी चीज़ें बताता है कि क्या वेदर, एयर टेम्परेचर है, एयर की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ठीक है, कितना रेनफॉल हुआ, रेन गेज, क्योंकि उसमें आजकल इनबिल्ट रेन गेजेस आने लगे हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारा मैंने वहाँ पर इंस्टॉल किया, ठीक। दिस इज़ द स्टडी एरिया। अब इससे क्या स्टडी कर रहा था मैं, इससे मैं ये स्टडी कर रहा था कि कितने रेनफॉल पे कितना मूवमेंट हो रहा है स्लोप का, है ना। अब जियो टेक्निकल से कैसे रिलेटेड है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सेंसर की लोकेशन डिसाइड करनी है, ठीक है, और सेंसर की डेप्थ डिसाइड करनी है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट, सॉइल टेंशन, ऑल दीज सेंसर्स आर क्या, वो डेप्थ वाले सेंसर्स हैं। आप अगर सरफेस पे रख दोगे तो आपको प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये सारे सेंसर्स ज़्यादा डेप्थ पर इंस्टॉल करने थे। अब वो डेप्थ कैसे पता चलेगी, जब मुझे स्लिप सरफेस पता चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी स्लिप सरफेस वाले जो मैं स्लिप सरफेस होगा, उसी स्लिप सरफेस पे अपना इंक्लाइनोमीटर एंड सॉइल एक्सटेंसोमीटर जो है वो इंस्टॉल करूँगा। बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो वो सारे सेंसर्स मैंने स्लिप सरफेस पहले निकाला। उसके लिए स्लिप सरफेस के लिए आपको सबको मैंने बता दिया कैसे निकलेगा। आपको C और phi वैल्यू चाहिए, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चाहिए, सब चाहिए। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, ये 6 साइट्स पे हम लोगों ने क्या किया, SPT किया पहले। बात समझ रहे हो ना। तो उससे हमको बोर होल से ये सारी इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे वो हमने लैब में सैंपल ला के निकाल लिया, ठीक है। सॉइल को क्लासीफाई कर लिया। आप देखो सारे कौन सी सॉइल है, कौन सा क्लासिफिकेशन होता है ये, GPGM पता है किसी को? हाँ, डुअल क्लासिफिकेशन है ये। इसमें क्या है, सिल्ट और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल सब मिक्स है। बात समझ रहे हो ना आप, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन, फिर C और phi निकाला मैंने। तो ये 6 साइट्स के, आप देखो कितनी टफ साइट है वो, वहाँ पे हमने 6 साइट्स पे 30 मीटर के बोरहोल करवाए, ठीक है। और ये पूरा की पूरा स्टडी किया, ये सैम्पल्स, ये कोर एंड ऑल जो है वहाँ का वो सारा है। ये जब आप SPT करते हो तो इस तरीके के कोर भी निकालने होते हैं, ठीक है। अब इससे तो मुझे ये पता चल गया सॉइल के बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक।
अब आप लोग अगर 4th ईयर में हैं तो आप लोग पढ़ रहे होंगे जियो फिजिकल टेस्टिंग, पढ़ा है क्या जियो फिजिकल? हाँ, जियो फिजिकल टेस्टिंग क्या होती है? जियो फिजिकल टेस्टिंग जो है वो सब सरफेस ऑफ सॉइल की प्रोफाइल निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कितनी डेप्थ पे आपको रॉक मिलेगी, बात समझ रहे हो? अब उसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं? GPR, आपने ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार तो सुना होगा, आई थिंक GPR होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे किया था MASW टेस्ट, ठीक है, मल्टी चैनल एनालिसिस ऑफ सरफेस वेव्स। ये एक सीस्मिक वेव बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। इसमें हमको पता चल जाता है कि डेप्थ ऑफ बेडरॉक क्या है, ठीक है। डेप्थ ऑफ बेडरॉक किस चीज़ पे डिपेंड करती है? शेयर वेव की वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो शेयर वेव की वेलोसिटी अगर लेटेस्ट से 850 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है या फिर ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, तो अगर वो है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ देखो, शेयर वेव की वेलोसिटी 450 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है, दैट मीन्स उसके बाद हमको बेडरॉक मिल गई। अब कितनी डेप्थ पे बेडरॉक मिली है? 20 मीटर के बाद में हमारी वेलोसिटी जो है वो कितनी जा रही है? 450 के ऊपर जा रही है। तो ये MASW टेस्ट से मुझे ये पता चल गया कि बेडरॉक हमारी 20 मीटर के अराउंड है। एक में हमको 30 मीटर के अराउंड मिल रही है, क्योंकि मैंने 2 सेक्शन के अराउंड ये टेस्ट किया था। ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया डेप्थ ऑफ बेडरॉक कहाँ पे है। अब इस स्लोप पे, क्योंकि ये शैलो लैंडस्लाइड थी, शैलो लैंडस्लाइड्स मतलब जिसमें 20-30 मीटर तक में ही आप लोगों को मिल जा रहा है आपका बेडरॉक, ठीक है। तो हम लोगों ने बेडरॉक से जस्ट ऊपर पे सेंसर इंस्टॉल करें, मतलब अराउंड 20 से 30 मीटर डेप्थ पे हमने सेंसर इंस्टॉल करे, ठीक है। अब ये है बेसिकली आपकी अभी रिसेंट का फोटोग्राफ है। हमने यहाँ ड्रोन सर्वे भी करवाया था। ड्रोन सर्वे क्यों करवाया था? जस्ट टू नो कि हम लोग कहाँ पे सेंसर इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या हम इस साइड पे सेंसर इंस्टॉल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये एक मूविंग स्लाइड है, हर साल बारिश होती है और ये जो मटेरियल है नीचे आ जाता है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे हम इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इस साइड पे हमारे सेंसर्स को इंस्टॉल किया, ठीक है। आप ये देखेंगे, ये देखो, ये लोकेशन पे जूम किया हुआ है मैंने। 5 बोरहोल्स हमने किए और यहाँ पे इन 5 बोरहोल्स में सेंसर इंस्टॉल किया हमने, ठीक है। ये देखो, ये सेंसर्स थे, एक्सेलरोमीटर, पीजोमीटर, वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट सेंसर और इंक्लाइनोमीटर। सबकी लोकेशंस मैंने इसमें मार्क कर रखी है। नीचे ये रोड है, जो ये रोड है ना, दिस इज़ दैट रोड, ठीक है। अब ये सेंसर इंस्टॉल किए, फिर इनसे हमने मॉनिटरिंग की। इसमें क्या होता था, हमने एक VSAT डिश इंस्टॉल किया था, ठीक है। वो आई थिंक फोटोग्राफ हो तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट नो इफ दैट इज देयर। ये सारे सेंसर्स जो है हमने इंस्टॉल किए। ये VSAT डिश होता है, ठीक है। वो अपने डिश एंटीना टीवी का DTH वाला जो डिश होता है ना, वैसे ही VSAT डिश होता है। ये हमको हर 10 मिनट में वहाँ से डेटा भेजता था मॉनिटरिंग करके, ठीक है। ये हमने इंटरफेस खुद से डेवलप किया इसके लिए, मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। ये वेदर स्टेशन था, ये हमारा रेन गेज था, ऑल दीज पर हमने इंस्टॉल किए। और ये फ्रेमवर्क हमने जनरेट किया जस्ट टू गेट दी अर्ली वार्निंग। ये क्या था, मैंने वहाँ पे क्यों इंस्टॉल किया? सो दैट इस सेंसर के डेटा जो भी इससे डेटा मिल रहा है उसको मैंने मशीन लर्निंग से एनालाइज किया, ठीक है। और उस डेटा से फिर हम लोग अर्ली वार्निंग देते थे, ठीक है। क्या होता है, इससे हम थ्रेशोल्ड्स डिसाइड करते हैं कि कितने रेनफॉल के बाद में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर एंड ऑल। तो हमने वो सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल करके उनको मॉनिटर किया। अब ये देखो, ये मॉनिटरिंग डेटा दिख रहा होगा आपको। पोर वाटर प्रेशर सेंसर का वेरिएशन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये टाइम के साथ में 14 महीने का वेरिएशन मैंने यहाँ पे शो किया है। वैसे ही आप लोग VWC का वेरिएशन देख सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट का, ठीक है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट क्या होता है ये पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में एयर टेम्परेचर का वेरिएशन, रेनफॉल का वेरिएशन, ये सब मैंने शो किया। ये हमारे सेंसर के डेटा हैं, ठीक। और उसके बाद में मैंने जैसे आपको कहा कि सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइम पे आई लर्नड देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज कॉल्ड जियो स्टूडियो, ठीक है। जियो स्टूडियो बहुत मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप लोग अगर इंडस्ट्री में भी जाएंगे ना तो यू विल बी नीडिंग दैट सॉफ्टवेयर। आप सीखना चाहें तो उसके क्रैक्ड वर्जन अवेलेबल हैं, यू कैन लर्न ऑल दोज, ठीक है। तो इसमें मैंने उनके 2 पैकेजेस, CFW और SlopeW। CFW क्या होता है, वो सब सरफेस हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और SlopeW जो है वो आपका क्या है, स्लोप की मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखो, मैंने इसमें सारे पैरामीटर्स निकाले हैं। सैचुरेटेड वाटर कंटेंट निकाला है, यूनिट वेट निकाला है, कोहेजन, फ्रिक्शन, D10, D60, ये सारे कैसे निकलेंगे, आपके जियो टेक्निकल टेस्टिंग से ही निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, आप एडवांस जब जियो टेक्निकल टेस्टिंग करते हैं ना तो उसमें एक टेस्टिंग होती है जिससे आप SWRC निकालते हैं, सॉइल वाटर रिटेंशन कर्व्स,
ठीक है। सॉइल वाटर रिटेंशन मतलब सॉइल कितना रिटेन करती है वाटर, तो वो कर्व्स मैंने डिफाइन करे हैं। इसके लिए प्लेट टेस्टिंग होती है, स्पेशलाइज्ड लैब्स में ही अवेलेबल है, नॉट एवरीवेयर, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो मैंने किया और ये सारे पैरामीटर आई हैव गिवन एज ए इनपुट इन द CFW एंड SlopeW सॉफ्टवेयर। ये मैंने उसको स्लोप को मॉडल किया, ठीक है। अब ये जैसे ग्रीन दिख रहा है ना, सॉरी, जैसे ये ग्रीन है, ये मैंने कंडीशंस वो करी हैं, इतने सिमुलेशंस रन करे हैं कंडीशंस के साथ। जैसे मैंने टोटल 6 सिमुलेशन रन करे सिर्फ रेनफॉल लगा के। ये जो ग्रीन दिख रहा है ये पहली बार सिर्फ रेनफॉल था। नेक्स्ट सिमुलेशन में मैंने क्या कंसिडर किया है, ये सारे टेम्परेचर, रिलेटिव डेंसिटी, विंड, सोलर, ये सारे डेटा को एज ए इनपुट दिया किसमें, इस सॉफ्टवेयर में, और स्लोप की स्टेबिलिटी चेक की। फिर नेक्स्ट सिमुलेशन में मैंने क्या किया कि सारे के सारे जो हमारे वेजिटेशन रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया, जैसे रूट डेप्थ हो गई, ठीक है, लीव वेजिटेशन इंडेक्स हो गए, ठीक है, ये सारी वेजिटेशन की हाइट हो गई, ऐसे सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके एनालिसिस किया। ये सारे उनके थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद मैंने स्लोप स्टेबिलिटीज़ निकाली। बेसिकली क्या स्लोप स्टेबिलिटी निकालने का क्या मतलब होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना, ठीक है। तो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाले। आई थिंक आप लोग ये कर चुके होंगे जो 4th ईयर वाले हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का काम, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाले मैंने, ठीक है, और फिर उनको मशीन लर्निंग के थ्रू एक रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम होती है, उससे मैंने उसको मॉडल किया, ठीक है। और मॉडल करने के बाद में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट किया। अब उस मॉडलिंग से मुझे जैसे पता चला कि जो वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट है वो 0.3 और 3 मीटर डेप्थ का जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस काइंड ऑफ मॉडलिंग्स, ठीक है। तो ये सारी पैरामीटर्स मतलब इंटरडिसिप्लिनरी मुझे स्टडी से ये सारी चीज़ें पता चली। जैसे मशीन लर्निंग मैंने इनकॉर्पोरेट किया अपनी स्टडी में, ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को इनकॉर्पोरेट किया। फिर ये जब मैंने वेजिटेशन पैरामीटर्स को लिए तो इट कम्स बेसिकली एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ से ये सारी स्टडी के पैरामीटर्स लिए और इन सबको कंबाइन करके ये मेरा मतलब पूरा के पूरा अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट हुआ। तो दिस इज़ व्हाट लाइक बेसिक अबाउट ऑल दी लाइक रिसर्च विच आई हैव डन, ठीक है, रिलेटेड टू स्लोप। और इसमें आप ये समझे कि हम लोगों ने किस तरीके से डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट टेस्ट को यूटिलाइज़ किया है यहाँ पे। बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई थिंग। अब एक हम लोगों की लैब ने वर्चुअल जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग लैब डेवलप करी है, ठीक है। तो ये उसका इंटरफेस है, मतलब इफ़ यू वांट, जैसे आप लोग आज टेस्ट तो करेंगे अपने लैब में, करते भी होंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिवाइज फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल, और बहुत सारे ये हमने क्यों डेवलप किया था एक्चुअली, देयर आर प्लेंटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे लैब की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फैसिलिटी है तो उन लोगों के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सॉइल मैकेनिक्स लैब बनाया है, वर्चुअल सॉइल मैकेनिक्स लैब, ठीक है। जैसे ये लिस्ट आप लोग, इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हैं इसमें, ठीक। अब जैसे आपको करना है यूनिट वाटर कंटेंट का टेस्ट करना है, लेटेस्ट से, ठीक है। पहले आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी सारी, ये सारी मेथड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद में प्री टेस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मतलब ये क्वेश्चनेयर है, ठीक, ये भी आप कर सकते हो। फिर पूरा के पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ बेस्ड ऑन दी हमारा IS कोड है उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद में सिमुलेशन हम करके देख लेते हैं, जैसे अब टेस्ट कैसे होगा, ठीक, उसमें इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं, ठीक। अब पहला क्लिक ऑन दी वेइंग मशीन, आपने मशीन पे क्लिक किया, वेइंग मशीन आ गई, ठीक है। उसके बाद में क्लिक ऑन दी कंटेनर, ये कंटेनर पे क्लिक किया, कंटेनर आ गया। उसके बाद में कंटेनर को मूव करना है हमको, तो कंटेनर के हमने रख दिया आपकी मशीन के ऊपर, ठीक है। अब इफ़ यू वांट टू गिव द सॉइल सैंपल पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। कितना देना है आपको, आप कोड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। चलो अभी मुझे 100 ग्राम्स देना है, 100 ग्राम सॉइल सैंपल हो गया। अब मुझे इसको वे करना है, अभी कौन सा ये वेट सैंपल है, तो ये मैंने ओवन में रख दिया, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन दी ओवन, सॉरी, हाँ, ये ओवन आ गया हम लोगों का, ठीक है। अब ये कंटेनर को हमने ओवन में रखना है, ये ओवन में रख दिया जैसे, ठीक है। हीट करना है इसको। अब क्या हुआ, ओवन में हीट करने पे उसका वाटर इवेपोरेट हो गया, तो आपका वो अमाउंट कम हो गया, ठीक है। उसके बाद में कंटेनर पे फिर वे करना पड़ेगा, ये हमने फिर वेइंग कर दी। अब उससे आपको ये सारा मिल गया,
ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे टेस्ट जो भी आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मैंने बताया है वो सारे ऑनलाइन इसमें किए हुए हैं। फॉर रिविजन यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है नहीं है? ओके, ठीक है। तो यही था, थैंक यू। Thank you, sir. It was indeed a wonderful session. Now, I would like to invite Dr. Mohammad Naseem, sir, for vote of thanks. Thank you. So it's my honor to deliver vote of thanks for this skill development and training program on geotechnical investigation and highway material testing. On the behalf of Civil IFSA, I would like to express my heartfelt gratitude to all who have made this event a success. First, I sincere thanks to Dr. Archana Kirti Chaudhary ma'am, Principal IPS IES, for providing facilities and constant support that allow us to host this program smoothly. I would like to thank Dr. Anil Joseph sir, President IGS, and Dr. AP Singh sir, Secretary IGS, for strong leadership and continuous encouragement for just such educational initiatives. Special thanks and gratitude to Dr. Nilima Satyam Madam, Chairman IGS Indore, for her valuable support and association, which added immense value to this program. I would like to extend our appreciation to IGS Indore and Index Laboratory for their collaboration and involvement, which greatly enhance to this program quality. To our esteemed experts, Dr. Kumar Gupta sir, Dr. Pratesh Mahajan sir, and Dr. Priyansh Singh sir, for their insightful session and their contribution in understanding the geotechnical investigation. Our heartfelt thanks to Dr. Kirti Chaudhary sir and Dr. Amish Sharma sir, Head of Department, for their continuous support and guidance for this program. Big thank you for organizing team and staff member for their tireless effort behind this success of the event. Lastly, but not least, I would like to thank the participants and students to their involvement to the success of this event. Thank you once again.